distance and displacement uh, are same when they are in the same direction. That's that's one thing we have understood. आप एक ही दिशा में जा रहे हैं. So oftentimes we always call it as a displacement time, या इसको distance time भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप ग्राफ के ऊपर you know you can show the distance and the displacement. अगर आपको कोई बोलता है कि ग्राफ में ये कैसे पता चलेगा, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो अगर लीनियर मोशन है, लाइक इफ यू जस्ट गो इन ए स्ट्रेट लाइन, तो समथिंग अलोंग द लाइन, जैसे आप देख पाएंगे कि से फॉर एग्जांपल टाइम वर्सेस आपने उसका डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया, ठीक है, तो यू कैन मेजर लेट्स से एट 10 मिनट्स इंटरवल पे आप मेजर करते हो, तो सबसे शुरुआत में एट ज़ीरो, अगेन दिस कुड बी seconds and this could be in meters, so time at zero, displacement is let's say 0. What it tells you is again that with time we are measuring the displacement from some place, like there could be always displacement is measured from a reference point. We always know that you can't define displacement in any other terms but from a specific point. So from whatever point we are talking about, the displacement is 0. So let's say someone starts at A. After 10 minutes or after 10 seconds, let's say, rather, he is displaced by 20 meters or something. So he moves in a straight line and he reaches, let's say, point B, which is 20 meters. After another 10 seconds, he is at maybe 40 seconds. Okay, so that's like point C, that's 40 seconds, 40 meters. After 30 seconds, or let's say 10, 20 and 30, he is at D, which is 50. तो अभी तक आपको लग रहा है एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, so what's so fancy about it? But at maybe at this point, at D, he starts to come back. So let's say 40, he gets back at C, which is 60, sorry, not 60, it is 40, and at 50 he gets at 30, or 60 it is 20, and 70 it is 10, and at 80 it is 0. तो अगर इनके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओगे तो यू वुड नीड टू कैप्चर द टाइम ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऑन द वर्टिकल लाइन. तो द ग्राफ फॉर दिस पर्सन वुड लुक समथिंग लाइक, क्योंकि ये 0 से लेके somewhat, okay, I've kind of created unequal intervals, so that is fine. I think we should probably make it consistent, otherwise वो फिर linear graph नहीं बनेगा. It won't be a linear graph for sure. This is 40, this is going to be 20, and here he comes at 0 back. तो ये दोनों की ज़रूरत नहीं है. तो A से B गया, B से C गया, C से D गया, और D से वापस C, B and A. This is what is happening. तो अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में देखें तो our journey would go from 0 to 60 seconds on the horizontal line. So 0, 10, and on the Y or the vertical one, I keep saying it to be as Y and X, because in grade 9 you are also going to learn about what we call as coordinate system, and that refers to these lines which you see on the graph as X and Y axis. That's why I keep referring to it, but never mind, we're still going to call them horizontal and vertical lines. So the initial position at time is equal to 0 was 0, so he would be here, and after 10 seconds he's, let's say, 20 maybe, this is, let's say, 20, and so that's the point over here. At 20 he is 40,
So which is like over here, say for example, and at this 30 he's at 60, which is, let's say, I need to draw lines now here, and after that he comes back at 40, he's at 40. So with this is 40 over here and this is 60 over here. So kind of here at 50 he's at 10, which is over here, and at 60 he's at 0. So if you connect the dots, then what you'll see is that first of all it's a straight line connecting the points from 0 to 60, and here also what you see is a straight line from 60 back to 0. So what you are seeing is a distance or a displacement time graph, but it is not like the one which we saw earlier, like हमने पिछली क्लास में देखा था. It was more like this, because it is showing you that the distance or the position of the object is always increasing. It is he's going in one direction only. But if you see here, his position is increasing up to a certain point, and after that it is coming down from 60 to 40, because you're measuring position along this. You should not look at like, I'm going in this direction and then going in this direction. It's not like that. On a graph, it is just showing a position measured by a value on this line or on this vertical line. So if you see, for each time interval, if the value of the position which is being depicted is increasing, that means it's going in the forward direction, in one direction. And when it is decreasing, we can tell that it is in the reverse direction. And at this point, his position becomes 0, or basically he's back to the starting point. All right, does that make sense? Like how, I mean, distance and displacement can be represented on on the same graph itself, right? But the point which we have to understand today is about that when we talked about a graph like this, we said this is for a uniform speed. We said that it is uniform motion. That means his object speed is uniform. And we said that on the graph, if you can take any 2 points and measure the position. So if this is d distance, this is time, then between time 1 and time 2, whatever be the change in its position, let's call it as S1 and S2, then a value which can be calculated based on this is that if you consider, if you consider the time interval, then it could be this point A and this could be B, any arbitrary point on this line. If you measure the vertical change, the change in this value, which is the distance, is the same as you would see in this case of, let's say this is ABC as a triangle. So this arm which you see over here is worth S2 minus S1, because it is kind of telling you how much the position or the distance changed in that time interval. And this A to C is actually showing you the difference of the time. So B to C is actually worth S2 minus S1, change in the position in kilometers, in meters, whatever could be. And A to C is T2 minus T1, which is the difference of the time. कितने टाइम में उसकी position A से B हुई. So knowing this, the division of this value S2 minus S1 divided by T2 minus T1 actually gives you the speed with which the object is moving. ये हमने बात करी थी कि ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालने के लिए आप वर्टिकल कितना मूवमेंट हुआ है ऑन दिस ग्राफ, और सेम मूवमेंट के लिए फ्रॉम ए टू बी पोजीशन जाने में वर्टिकल मूवमेंट कितना हुआ और ए टू बी जाने में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्या हुआ, इन दोनों का रेशियो इज द स्पीड. एंड वी कॉल दिस
value also as what we call as the slope of the line. Slope of the line. Slope word सुना ही है सबने कि भाई क्या स्लोप है, पहाड़ों पे चढ़ना स्लोप बहुत हाई है, गाड़ी चढ़ाना मुश्किल हो जाएगा जब when you go on a mountain, something like this. इतना steep नहीं, but let's say like this. So when we say slope is high, what we mean is चढ़ाई, we call it चढ़ाई, and for a good reason. चढ़ाई मतलब कितना ऊपर जाना है. Like let's say आपको A पोजीशन, ये आप नीचे हिल स्टेशन से नीचे, एंड दिस इज द टॉप ऑफ द हिल स्टेशन, यहाँ तक जाना है आपको. तो ये चढ़ाई जो आपको चढ़नी है, जैसे आप वैष्णो देवी गए, तो चढ़ाई जो आपको चढ़नी है उसके लिए क्या होता है कि यू मूव अ सर्टेन डिस्टेंस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बट एट द सेम टाइम यू नॉट गोइंग हियर, यू हैव टू राइज अप टू अ सर्टेन पोजीशन ऑल्सो. तो ये जो हाइट में जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से हम कहते हैं कि इसकी देयर इज अ स्टीप चढ़ाई या वट एवर. सो व्हाट वी कॉल दिस rise of your position also from the horizontal, horizontal, you can say जितना आप horizontally भी गए उसके अलावा आपने कुछ vertical distance भी जो चढ़ा, that is a measure of what we call as the slope of any path. यानी ये जैसे लाइन है तो इसकी लाइन की स्लोप, और इसका मेजर कैसे होता है is with how much you have risen up and how much you have moved forward. So always it is a measure of what we call it as vertical steps या vertical distance कितना लिया आपने ऊपर versus the horizontal steps or horizontal distance, and that's called as the slope of a line in this case. तो आप खुद ही देख सकते हैं कि अगर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर आप सेम रखें और किसी का वर्टिकल डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो उसकी स्लोप ज़्यादा हो जाएगी. जैसे सपोज आप इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चले और एक जना इतना चढ़ा, ये वर्टिकल उसका डिस्टेंस है ए, तो ए से गए, ए से बी तक, जैसे एक तो ये हैं, तो इनकी जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यही है और वर्टिकल डिस्टेंस ये है, और सपोज इतना ही एक और चलता है हॉरिजॉन्टल, समथिंग लाइक मे बी हियर, बट इनका जो वर्टिकल डिस्टेंस राइज है इतना है, एंड दिस इज लाइक मे बी A1 एंड दिस इज B1. तो आप खुद ही देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली मे बी दोनों एक ये चले ऊपर और एक ये चले, तो दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज प्रीटी मच द सेम. तो यानी ये वैल्यू तो आपकी है सेम, बट इन्होंने जो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल किया ऊपर वाले इस पिक्चर में, दैट इज मोर देन द वन हु इज एट द बॉटम. तो जिसका वर्टिकल स्टेप्स रिजन फॉर द सेम अमाउंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्यादा होगा, उस लाइन की स्लोप भी ज्यादा होगी. एंड बाय दैट आई मीन कि कोई भी लाइन ऐसे से ऊपर जितना जाते जाओगे आपकी स्लोप बढ़ती जाएगी. ऑलवेज जितना भी राइज होता जाएगा लाइन के एंगल में, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसमें जितना भी इसका एंगल चेंज होता जाएगा आपकी लाइन की स्लोप बढ़ती जाएगी. तो हमेशा ये याद रखना है कि जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी जैसे आप जमीन पर गाड़ी चला रहे हो, लाइक आई मीन हियर ऑन इन गुड़गांव, तो यू आर प्रीटी मच गोइंग ऑन ए फ्लैट लाइन, फ्लैट रोड. तो जो फ्लैट रोड होती है उसकी स्लोप इज 0. क्यों? क्योंकि योर वर्टिकल स्टेप्स आर 0. आप कहीं से कहीं तक चले जाओ, आपका एलिवेशन नहीं चेंज हो रहा है, यू आर स्टिल गोइंग इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ठीक है, जब आप पहाड़ पे जाते हैं तो आप कुछ ऊपर चल रहे हो तो यू कैन कैलकुलेट दैट. बट अगर सपोज आपको एकदम खंबे पे चढ़ा दिया किसी ने, दे आस्क यू टू climb up a wall or climb up a pole or you climb up a tree or climb up a building किसी भी तरीके से, तो उस केस में जो स्लोप होती है that is like इस तरीके की सिचुएशन, और उसमें स्लोप जो निकल के आती है, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल नहीं जा रहे हो उस केस में,
So this value down here is 0 and you may rise up to certain distance, यानी कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आप किसके ऊपर चढ़े। खेल खेल में आपने हो सकता है टेबल के ऊपर चढ़ गए तो मे बी 1 मीटर्स हो सकता है। अगर आप और ज़्यादा एडवेंचरस हैं तो आप बोले कि मैं एलमेरा के ऊपर चढ़ गया तो मे बी 2 मीटर्स चढ़ गए। अगर आप बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं तो मे बी आप दूसरे के फ्लोर पर चले गए तो मे बी लाइक 4 मीटर्स ऊपर चले गए। एंड इफ़ यू आर रियली इनटू इट तो प्रॉबेबली यू went up to the top of the building which is like maybe 15 floors and that would be maybe 40 meters up. In whatever case, आपका horizontal distance is not moving, you just सीधा ऊपर। तो ये जो वैल्यू है that is called as infinitely large value, जिसको हम सिंबल स्लीपिंग 8 से भी रिप्रेजेंट करते हैं कई बार, या इसको हम बोल देते हैं इनफाइनाइट INFINITE, यानी अ वेरी लार्ज वैल्यू। और कभी कभी इसको हम अनडिफाइंड भी बोल देते हैं क्योंकि वेरी लार्ज वैल्यू के ऊपर कोई वैल्यू आप रख नहीं सकते तो हम उसे बोल देते हैं अनडिफाइंड। तो मीनिंग विच, इसका कनेक्शन इससे क्या है आप पूछोगे। मीनिंग विच कि ये स्लोप एक्चुअली टेल्स यू अ लॉट। जब भी कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको देखने को मिलेगा यू विल रन इनटू कि कुछ ऑब्जेक्ट, एक कार ऐसे गई, एक कार ऐसे गई, एक कार ऐसे गई और एक कार ऐसे है। एंड लेट्स से दिस कार्स आर A, B, C and D and this is your distance versus time graph for 4 cars। आपसे ये पूछेंगे और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइम है तो ऑब्वियसली इट कुड बी इन 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स ऐसे। और यहाँ पे मे बी 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 300 मीटर्स एंड सो ऑन। आपसे पूछेंगे बताओ भैया सबसे स्लो कार कौन सी है, तो अनुष्का क्या बोलेंगी इसमें से A, B और C और D में से कौन सबसे फास्ट मूविंग कार को रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन, कौन स्लोएस्ट मूविंग कार को रिप्रेजेंट कर रहा है। Does Arna have an answer to this? A is slowest and D is the fastest one. Any particular reason you can give why you think A is the slowest one? So horizontal line is basically 0. What does that mean? Like horizontal line is basically 0. तो हमेशा जब आपसे हमने पूछा कि स्पीड, राइट, तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन, ये तो बात ठीक है कि आपको ये बता दिया कि स्लोप उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन के करीब आ रही है, बट हाउ डू एक्सप्लेन द फास्ट एंड द स्लोएस्ट इन दिस केस। लाइक आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, यू कांट से दैट, आई मीन हाउ वुड यू किस तरीके से आप बता रहे हो। आप ये बोल सकते हो कि सपोज व्हाट यू कैन टेल इज कि अगर आपने दो टाइम ले लिए कोई भी और उन 2 टाइम इंटरवल के ऊपर लेट्स से ये ले लेते हैं क्योंकि इसमें सारे लाइंस कट हो जाएंगी। तो अनुष्का, कैन यू हियर अस एट लीस्ट, यू कैन कंफर्म दैट वेदर यू आर एबल टू हियर अस और नॉट, लाइक जस्ट टाइप इट इन द चैट। समथिंग सीम्स टू बी नॉट वर्किंग इन योर साइड, आई कैन सी दैट। यस सर, आई कैन हियर यू, ऑल राइट। तो इसमें ये पता लगाना है कि A फास्ट है तो A फास्ट है या B फास्ट है, आप लिख के बता दो हमको, अभी पता तो चले, या आप एग्री कर रहे हो जो आरना ने बोला है। ऑलराइट, सो व्हाट यू कैन सी इज कि 2 ऐसे टाइम इंटरवल लो जो दोनों के से आप अगर वर्टिकल लाइंस खींचें तो सारी लाइंस को कट कर जाए। तो जैसे यहाँ पे मैंने ये 10 seconds or 20 seconds लिया and I drew vertical line and you can see that it is cutting all the 4 lines, और 20 से भी it is cutting all the 4 lines। तो अब क्या करना है उसके केस में, जैसे हमने यहाँ पे ये एक ट्राइंगल बनाया and we try to find out how much is the vertical distance जो ट्रैवल किया है इधर इस सेम टाइम में एंड हाउ मच इज द, ऑब्वियसली क्योंकि सेम टाइम लिया तो ये तो बराबर ही होगा। तो एक बराबर टाइम में दोनों all the 4 how much distance did they cover is what we need to find out।
तो अब ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा हल्का सा, इट इज़ ए लिटिल वो बना दिया मैंने, तो इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ए बी सी एंड डी, डी ए बी एंड सी, और यहाँ पे आपका ये टाइम लेट्स से T1, इसको T1 मान लेते हैं इन जनरल, और ये T2, और इससे वर्टिकल लाइन बनाते हैं, और इससे भी वर्टिकल लाइन बनाते हैं, और ऊपर तक जाएगा ये। सो व्हाट यू गेट टू सी इज कि सेम टाइम में T2 माइनस T1 जो टाइम है, आप इधर भी एक ट्राइंगल देख सकते हैं, ऐसा बन जाएगा, इधर भी एक ट्राइंगल देख सकते हैं, ऐसा बन जाएगा, और इधर भी एक ट्राइंगल देख सकते हैं, वो ऐसा बन जाएगा, और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस ऑल द वे अप। तो व्हाट यू कैन सी आउट हियर इज कि सेम टाइम में जो एक कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो ये है इतना, एंड इसका मेजर लेट्स से ये इतना मैंने, आई मीन यू कैन सी दिस ब्लॉक जो मैं बना रहा हूं, उससे आपको अंदाजा लग रहा होगा, राइट? तो ये तो कार ए ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया इन अ सर्टेन टाइम T2 माइनस T1, जिसकी आप ग्राफ पे वैल्यूज आपको दिख जाएंगे। नाउ सेम इन द सेम टाइम इंटरवल जो कार बी को मूव करना पड़ा, दैट इज दिस मच। अब आप देखो ए से बी को ज्यादा मूव करना पड़ा वर्टिकली अगर आप मेजर कर रहे हो डिस्टेंस, क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम। ये आप इस लाइन को बैक ट्रेस करोगे तो ये वैल्यू यहाँ पे मैंने मेजर करी, और इसके लिए अगर आप हॉरिजॉन्टली इसको ट्रेस करोगे तो सेम वैल्यू यहाँ पे ये ए के लिए आई। ये ए ने इतना ट्रैवल किया, ये बी ने ट्रैवल किया। गॉट इट? या नाउ फॉर सी इफ यू मेजर, सी कहां से कहां तक गए सेम टाइम में, ये सी की लाइन है ये वाली along this one, तो सी in the same time he traveled this much distance, ये, and if you trace it back you'll probably see somewhat here and horizontally ऐसे। तो ये हो गया C का डिस्टेंस, एंड जो D ने ट्रैवल किया इन द सेम टाइम इज ये लाइन है D की, तो D का T1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट आ गया, और T2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट आ गया। तो सेम टाइम में ही ट्रैवल लाइक ये वाला पार्ट विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक, अगर मैं यहाँ से बनाऊँ कि हॉरिजॉन्टली, तो और ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पे, यू आर आस्किंग समथिंग अनुष्का, ये D का हो गया। Yeah, can you put up your question on the chat if it is a short one, and I can put names to these, like जैसे ये जो vertical है इसको I can say call it as D1, इसको D2 बोल सकता हूँ, ये जो C ने चला it is D3 and this is D4। All right, तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो स्पीड ऑफ वन अगर आपको A निकालनी है तो दैट वुड बी कि कितना इसने डिस्टेंस कवर किया, विच वी रेफर टू एज D1 ओवर T2 माइनस T1, दैट इज द स्पीड ऑफ A, एंड फॉर स्पीड ऑफ B would be D2 over T2 minus T1, and speed of C is D3 over T2 minus T1, and speed of D is D4 over T2 minus T1. Can you see us proper? Can you hear me proper? आप एक बार और confirm कर दो. So now, if you look at, these are the 4 speeds of the different cars which you have. So what you get to see is किस time इनका denominator सबका बराबर है. So if denominator is same, the speed is dependent on what is in the numerator, D1, D2, D3 and D4, which is representing the vertical distance covered, यानी इनसे horizontal जो points मिले उनके बीच में जो अंतर है उसको represent कर रहा है. So knowing that, the point I was trying to make is कि इनका सबका time interval same है, तो जो speed है वो सिर्फ distance traveled पर depend करेगी, because we have restricted them to the same time, दोनों को सबको compare करने के लिए, and that is the way by which we should compare, कि आप एक चीज को fix कर दो, तो हमने यहाँ time को fix कर दिया दोनों सबके लिए, तो distance D1, D2, D3, D4 में सबसे largest value कौन सी है?
D की, which is D4, और सबसे कम कौन सी है? ये D1. एज यू कैन टेल, यहाँ पे ये सबसे वर्टिकल राइज इसका सबसे कम है, उससे ज़्यादा, उससे और ज़्यादा, उससे और ज़्यादा. सो इन दिस केस स्पीड ऑफ D, यानी स्पीड ऑफ D इज द मैक्सिमम, ये मैक्सिमम स्पीड है इनकी, और ये स्लोएस्ट है माश है. तो आप इसको ये भी लगा सकते हो कि किसी भी ग्राफ को देख के भी आप बता सकते हो. जैसे आपको मैंने अभी बताया कि ऑन ए लीनियर ग्राफ विच इज लाइक ए ग्राफ विच लुक्स लाइक ए स्ट्रेट लाइन, हमेशा जो ग्राफ स्टीप है, सबसे ज्यादा स्टीप मींस जितना ऊपर की तरफ राइज करता जाएगा, दैट हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्लोप. और इस केस में स्लोप इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द स्पीड ऑफ ए कार. तो अगर मैक्सिमम स्लोप है तो हम बोल सकते हैं मैक्सिमम स्पीड होगी उसकी. सबसे कम स्लोप है तो सबसे कम स्पीड होगी. अब अगर इसमें एक ऐसी गाड़ी होती जो मान लो ऐसे ही बता देते कि ई है, ही इज लाइक हियर, यानी यही कह लो कि ई क्या होता है, ई के साथ एक स्टोरी होती है कि वो कहीं पे पहुंच के, लेट मी ड्रॉ इट विद अ डिफरेंट कलर सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली. एक और कार है ई, तो ई के साथ क्या स्टोरी है? ई की मूवमेंट हॉरिजॉन्टल लाइन है. अब इसका क्या मतलब है कि वो एक पोजीशन तक तो गए, एट t is equal to 0 ही इज एट ए सर्टेन पोजीशन, एंड उसके बाद उनका डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है टाइम के साथ. तो डिस्टेंस अगर आपका चेंज ना हो टाइम के साथ तो इसका मतलब है आप वहीं खड़े हैं. सो यू आर नॉट मूविंग एट ऑल, एंड दैट कैन हैपन एट एनी प्लेस. लाइक आप यहाँ पे जाके भी तो खड़े हो सकते हो, ऐसा हो सकता था, या आप यहाँ पे जाके खड़े हो सकते हो. तो यू ट्राई एट ए गिवन पॉइंट समवेयर t इक्वल्स टू 0 पे आप कहीं किसी पोजीशन पे हो, या आप वेट कर रहे हो इन गाड़ियों का. यू आर काइंड ऑफ लाइक एन ऑब्जर्वर कि मैं देखता हूं कौन फास्टेस्ट है. मे बी यू हैव ए मीटर क्लिक कि कितने टाइम में इन्होंने सबने वो डिस्टेंस मार्क ट्रेवल किया. तो एक बंदा यहां बैठा रखा है, एक यहां पे, एक यहां पे, 3 पोजीशन पे. तो व्हाट यू वुड ऑब्जर्व इज कि ये सब अपनी जगह पर ही हैं, इनकी स्पीड इज 0. तो यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन, तो दैट रिप्रेजेंट्स ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. स्टेशनरी मतलब जो चलता नहीं है, पेड़ की जड़ बोलते हैं जिसको हिंदी में. जैसे आपकी बिल्डिंग है, इट इज नॉट मूविंग, आई मीन रिलेटिवली स्पीकिंग अब नहीं बात करेंगे, बट टू मी इट लुक्स लाइक आई एम नॉट मूविंग एट दिस पॉइंट. द बिल्डिंग इज नॉट मूविंग टू मी. किसी के रेफरेंस में हो सकता है मूव कर रहे हो, बट टू मी इट्स नॉट मूविंग. तो जो नहीं मूव कर रहा है उसका हॉरिजॉन्टल ग्राफ होगा, और किसी का वर्टिकल ग्राफ हो ऐसा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. मतलब इनफाइनाइट स्पीड तो कोई नहीं अटेन करता. सो मैक्सिमम आप ये मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा भी होगा तो ऐसे जा रहा होगा ज्यादा से ज्यादा, ही इज सुपर फास्ट. स्लगिश होगा वो इस तरफ होगा थोड़ा सा, जैसे इस साइड. the more you go towards the horizontal, the slower you are. The more you go towards the vertical, the faster you are. So that's the difference. तो आपको अगेन इस डिस्प्लेसमेंट टाइम या डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे काफी सारे ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चंस आते हैं, एंड यू मस्ट हैव सीन क्वाइट ए फ्यू इवन इन योर असाइनमेंट ऑल्सो. तो कई बार तो यही इन्फ्रेंसेस आपको ड्रॉ करने पड़ते हैं कि पहली चीज आपको एक ग्राफ किसी ने टेबल दे दिया, जैसे एक टेबल दे दिया, एंड दे आस्क यू टू प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ इट. तो आपको ये इस तरीके का ग्राफ बनाना पड़ेगा. ठीक है. फिर दूसरी बात आपको, यानी सो फर्स्ट थिंग इज टू ड्रॉ अ ग्राफ. एक ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए यूजिंग अ टेबल, यूजिंग अ टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन. पहली चीज. दूसरा, इफ यू आर गिवन अ ग्राफ एंड ऑल्सो मेक सम कमेंट्स, लाइक मेक सम ऑब्जर्वेशन. तो यानी आपके पास एक टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन है, उस पर आपने ग्राफ बनाया,
उस ग्राफ बनाने के बाद आपको उस पर कुछ ऑब्जर्वेशन भी बतानी है, जैसे ये ग्राफ है। तो ऑब्जर्वेशंस किस तरीके के हो सकते हैं कि यू कुड से दैट इट इज ए लीनियर ग्राफ। बी, इट कैन ऑल्सो शो कि इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, राइट? 10 सेकेंड में 20 मीटर्स, फिर 10 सेकेंड में 20 मीटर्स, फिर 10 सेकेंड में 20 मीटर्स अप टू दिस पॉइंट। अगर यही ग्राफ होता, अब आप इसको भूल जाइए, मैं सिर्फ ये वाले इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं कि वो सिर्फ ऑनवर्ड गया, यानी आप इससे आगे नहीं गए, ऐसे नहीं गए वापस। So you can say that the object, whatever be the object, is traveling equal distance in equal time intervals. अगर कोई इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो इसका मतलब है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है या कांस्टेंट स्पीड से। तो हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि ये ग्राफ से या ये टेबल से आप इसकी स्पीड निकाल के बताओ। तो स्पीड निकालने के लिए अगेन या तो आप ग्राफ को यूज कर सकते हो या टेबल को यूज कर सकते हो। तो इसमें कोई भी दो टाइम ले लीजिए, एक को t1 मान लीजिए और एक को t2 मान लीजिए, और इधर डिस्टेंस s1 और s2 मान लीजिए। एंड सिंस यू नो स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड इन ए सर्टेन टाइम इंटरवल, तो आप s2 माइनस s1 जो वैल्यू होगी ओवर t2 माइनस t1 जो वैल्यू है, जो इस केस में 20 माइनस 0 अपॉन 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 एंड 20 माइनस 0 करके इट कम्स आउट टू बी 2 मीटर्स पर सेकेंड, बिकॉज ये मीटर्स में, ये सेकेंड में। तो ये इनकी कांस्टेंट स्पीड है। यानी आप किसी भी दो टाइम के बीच में कंपेयर कर लो, जैसे t2 है, इसको बोल दो t3, तो और ये इसे बोल दो s3, तो भी अगर आप स्पीड इन दोनों पॉइंट के बीच में निकालेंगे तो भी स्पीड वुड बी s3 minus s2 upon t3 minus t2, which is s3 is 40 minus 20 upon 20 minus 10. That also gives you 20 upon 10 or 2 meters per second. यानी speed is same, तभी पता चल रहा है क्योंकि equal intervals in equal time cover हो रहे हैं। तो this is some vital information about a distance time graph which has a uniform speed which looks like a straight line starting from an origin and going in a certain direction, जिसकी slope is telling you how fast that object is moving, and you can draw comparisons। ऐसी भी चीजें आती हैं आपकी, तो हमेशा इन चीजों को क्लियरली समझ लेना चाहिए, ठीक है? ऑल राइट, सो आई थिंक आज के केस में आज इतना ही कवर करते हैं।